everyone, dear students. Good morning to all. Today we are going to read poem Wind, which was written by Subramanya Bharati. But before starting it, let me introduce you to the poet who wrote it. This poem is composed by a great Tamil poet Subramanya Bharati. So you could see here, he was also known as a Bharatiyar and was a Tamil writer, poet, journalist, independence activist, social reformer and polyglot. Popularly, he was also known as Mahakavi Bharati. He was known with the name of Mahakavi. He was pioneer of modern Tamil poetry and is considered one of the greatest Tamil literary figure of all times. So he was born on 11 December 1882 at Ethaiyapuram and died on 12 September 1921 at Chennai. His full name was Chinnaswamy Subramanya Bharati and name of his wife is Chillaman. She from 1897 to 1921. Parents' name is Chinnaswamy Subramanya Iyer of its father and mother name was Elakummi Ammal. Okay, now this poet, though he wrote most of his poem in Tamil and he was quite famous for his poems, but as this poem was translated, the poem Wind was actually translated from Tamil to English and also by a famous poet named A.K. Ramanujan. A.K. Ramanujan was also known for his translation of classical and modern poetry. So let's start with the poem Wind. Now the poet has written here that the wind blows strongly and causes a lot of destruction. As we know that the power of the wind, that wind is a natural phenomena, okay, and when it blows strongly, जब ज़ोर से हवा बहती है तो बहुत सारा नुकसान होता है. It causes lot of destruction. The power of wind in this poem has been described. Okay, and the poet says that the wind is destructive. He has linked the destructive power of the wind to the adversities of life. Adversities यानी हमारी लाइफ में जो भी मुश्किलें आती हैं उनको कहा है. And says that the weak people, whenever there is any problem in their life, जो कमज़ोर लोग होते हैं they break down, यानी वो they give up, वो उम्मीद छोड़ देते हैं जीने की और बहुत जल्दी हार जाते हैं जो कमज़ोर लोग होते हैं. बट स्ट्रॉन्गर पीपल इमर्ज आउट ऑफ एडवर्सिटीज़ स्ट्रॉन्गर, मतलब कि और जो लोग मजबूत होते हैं, कमज़ोर नहीं होते हैं, वो इन एडवर्सिटीज़ को फेस करते हैं, इन मुश्किलों को फेस करते हैं और बहुत स्ट्रांगली, होपली और खुशी से अपनी लाइफ जीते हैं. ओके, सो दिस पोएम एक्चुअली इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैसेज that we should be mentally tough, physically strong if we want to survive the hardships of life. अगर आपको अपनी लाइफ में जो भी मुश्किलें आती है और वो आएगी and it is a fact that there will we have to face the hardships of life, तो क्यों ना हम इन मुश्किलों को हंसते हुए स्ट्रांगली, मेंटली, फिजिकली बहुत टफ होकर, स्ट्रांग होकर फेस करें. A weak person breaks down like a weak building and crumble. जो कमज़ोर होता है वो बहुत जल्दी उम्मीद छोड़ देता है जीने की. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द पोएम. फर्स्ट वील रीड सम लाइन्स हियर. दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम. विंड कम्स सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. हियर इट इज़ शेल्फ. ओके, F. There, look what you did. You tore the pages of the books. You brought rain again. So here this opening lines of the poem is actually a conversation of the poet with the wind. Okay, so he's talking to the wind. He's saying the wind to come softly. Softly means gently. ज़ोर से नहीं बहना है. तो वो हवा से कहता है कि come softly. जैसे एक छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल अपने दबे पाँव से चलता है, बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है. सो इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द पोएम द पोएट इज़ रेफरिंग टू द विंड एज ए यंग चाइल्ड. ही इज़ सेइंग दैट इट शुड कम सॉफ्टली जस्ट लाइक अ स्मॉल चाइल्ड डज.
डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, ही इज़ टॉकिंग टू द विंड कि जब तुम आती हो तो डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, स्कैटर मतलब बिखेरना इधर उधर। तो द पोएट ही वुड बी डूइंग हिज राइटिंग वर्क, तो उनके पेपर्स रहते हैं तो वो रिक्वेस्ट करता है कि डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स मत बिखेरो। डोंट थ्रो अराउंड द बुक्स ऑन द शेल्फ, और डोंट थ्रो द बुक्स विच आर केप्ट ऑन द शेल्फ, जो शेल्फ पे बुक्स पड़ी है उनको तुम नीचे मत फेंको। There, look what you did. Now, as he was saying to the wind what did? He tore the pages of the books. It brought rain again. So, here look what you did. You tore the pages of the books. You brought rain again. यानी तुमने सारी बुक्स के पेजेस फाड़ दिए। टोर मीन्स टू टीयर, फाड़ देना। यू ब्रॉट रेन अगेन, और जब तेज़ हवाएं चलती है तो उससे फिर से तेज़ बारिश हुई। सो यू ब्रॉट द रेन अगेन। सो हियर द पोएट इन द ओपनिंग 4 lines he is talking to the wind like a small child, as the wind is a small child, and later we come to know that the wind is destructive, just like a youth, just like a young boy or a young girl who is full of energy, violence and destruction. Okay, now next, you are very clever at poking fun at weaklings. Here it is, sorry, so here it is weaklings. He has written weaklings. So you are very clever, frail crumbling houses, crumbling doors, rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives and crumbling hearts. So you are very clever at poking fun at weaklings. तो यहाँ पर वो पोएट कहता है विंड को कि तुम बहुत होशियार हो, कि तुम मतलब विंड उन्हीं लोगों को परेशान करते हैं जो कमज़ोर हैं। और पोकिंग फन हियर मीन्स मजाक उड़ाना, टू मेक फन ऑफ समवन, एंड वीकलिंग मीन्स पर्सन हु इज़ वीक, और वो चीज़ें जो कमज़ोर हैं। तो हवा उन्हीं को डिस्ट्रक्ट करती है, उन्हीं को ख़त्म करती है जो कमज़ोर है, उन्हीं का वो मजाक उड़ाती है। फ्रेल, फ्रेल हियर मीन्स वीक। क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग मीन्स फॉलिंग और टू कॉज, यानी वो चीज़ें जो गिरने ही वाली होती है, चरमराई हुई, ठीक है, जर्जर जिसको हम कह सकते हैं। जैसे कुछ बिल्डिंग्स होती है, कुछ ऐसे दरवाजे होते हैं जो आप हल्की सी हवा से भी टूट के गिर जाते हैं। दोज थिंग्स आर कॉल्ड एज क्रम्बलिंग, ओके, फॉलिंग और टू कॉज। सो क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, crumbling wood, crumbling bodies and crumbling lives. तो here the poet is saying कि कमज़ोर घर, कमज़ोर दरवाजे, रैफ्टर मीन्स बीम, जिनके ऊपर छत बनती है, उन बीम्स को कहते हैं रैफ्टर्स। क्रम्बलिंग वुड, वुड मीन्स ट्रीज, प्लांट्स जो बहुत कमज़ोर होते हैं, जो जड़ों से मजबूत नहीं होते हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज़ यानी वो जानवर छोटे छोटे जो तेज़ हवाओं से बहकर मर जाते हैं। क्रम्बलिंग लाइव्स यानी छोटे बच्चे या बूढ़े जो बहुत ही वीक होते हैं। एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स जो कमज़ोर दिल वाले होते हैं। सो हियर द गॉड विनोज, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल। सो हियर ही इज सेइंग दैट क्रशेज देम ऑल, ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम। तो यहाँ विनोज, द विंड इज़ कंपेयर्ड टू द गॉड, यहाँ पर विंड को गॉड कहा गया है। और विनोज मीन्स, एक्चुअली विनोज मीन्स दैट प्रोसेस, यू कुड सी द पिक्चर इन योर टेक्स्ट बुक, टू वुमेन्स आर डूइंग द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। विनोइंग का मतलब हमने अक्सर देखा होगा खेतों में, या लेडीज़ जो गेहूँ के दानों के ऊपर जो छिलके होते हैं, ठीक है, उनको उतारने के लिए विनोइंग किया जाता है, जिससे वो जो छिलके ग्रेन से अलग होकर हवा से अलग हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है, यानी ग्रेन अलग हो जाता है और उसके ऊपर का जो हस्क होता है वो अलग हो जाता है। दैट थिंग इज कॉल्ड एज विनोइंग। सो हियर द विंड इज विनोइंग दिस थिंग्स,
ओके, तो यहाँ पर उस विनोइंग को किसको कहा गया है? ये जो कमज़ोर हाउसेस है, क्रम्बलिंग डोर्स है, वुड है, बॉडीज़ है, तो द विंड गॉड इज़ विनोइंग दिस थिंग्स। इन चीज़ों को हवा की तरह, जैसे कि वो हस्क उड़ता है दाने से अलग, उसी तरह से ये लोग उड़ जाते हैं एंड क्रशेज देम ऑल, और इनको बिल्कुल ही क्रश यानी मरोड़ देता है, तोड़ मरोड़ देता है, क्रश कर देता है। ही वॉन्ट टू वॉट यू टेल हिम, हवा वो नहीं करेगी जो उसको आप कहोगे। उसका जो नेचर है बहना, तेज़ हवा में बहना, वो वही होगा। सो यू कांट स्टॉप द विंड फ्रॉम ब्लोइंग। ओके, नाउ these were the lines of the destructive things done by the wind. Now in the next lines we are going to read that if we are strong, अगर हम बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो यही विंड जो डिस्ट्रक्शन करती है हमारी फ्रेंड भी हो सकती है। सो लेट रीड फर्दर अबाउट दिस लाइन्स। सो कम, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to form the body. Make the heart steadfast. Do this and the wind will be friend with us. So here the things, let's build strong homes. The poet is motivating and he is giving an inspiration and idea to the people, to the things to be strong. Okay, let's join the doors firmly. Firmly means strongly, tightly. Practice to form the body. हम अपनी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि हवा से हम we can't the wind can't blow us. Make the heart steadfast. Steadfast means also strong. Okay, firm. डू दिस, अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम अपने घरों को इतना मजबूत बना देंगे, घरों के दरवाज़ों को इतना मजबूत बना देंगे, हमारी बॉडी को मेंटली और फिज़िकली इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे, हमारे हार्ट को यानी हम दिल से स्टेडफास्ट रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे। डू दिस द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, तो यही हवा हमारी फ्रेंड बन जाएगी, यानी फिर कोई भी हमारा कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मतलब ये कि इफ़ देर आर हार्डशिप्स इन आवर लाइफ, अगर हमारे सामने कोई चैलेंज आता है, बहुत बड़ी मुश्किल आती है और हम उसको हंसते हुए बहुत स्ट्रांगली उसको फेस करते हैं, तो क्या होता है, हम जीत तो जाते हैं और उससे हम एक नई चीज़ सीखते हैं और हम और ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और ज़्यादा नया मोटिवेशन मिलता है, और इससे हम बहुत इजीली लाइफ में जो भी हार्डशिप्स, वॉट एवर द एडवर्सिटीज़ कम्स इन आवर लाइफ, वी फेस इट वेरी लाइटली, हैप्पीली, हंसते हुए। ठीक है, तो हियर द पोएट वांट टू से अस दैट मेक दिस हार्डशिप्स, दिस एडवर्सिटीज़ द पार्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, ये हमारी लाइफ का हिस्सा है एंड दिस थिंग्स विल कम टू यू, तो वाई नॉट मेक दिस थिंग्स एज अ फ्रेंड, है ना। हम इन चीज़ों को अगर अपना दोस्त बना लें तो हम ये चीज़ें हमको मुश्किल नहीं लगेगी। ओके, सो हियर द विंड इज़ कंपेयर्ड टू द गॉड हु गिव्स हार्डशिप इन अ लाइफ, बट अलॉन्ग विद दैट ही ऑल्सो गिव्स अस पावर, स्ट्रेंथ, स्टेमिना टू फेस, टू विथस्टैंड द प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, वॉट एवर कम्स इन आवर लाइफ। The wind blows out weak fires. Now here see these 4 lines are very beautiful lines and very inspirational words here are. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. Now listen carefully what these lines actually reflects here. The wind blows out weak fires means, जब आपने देखा होगा आग लगती है कहीं पर, छोटी सी एक चिंगारी होती है हल्की सी, जैसे आप माचिस जला दो, ठीक है। इफ़ यू लिट अ मैच स्टिक और सिर्फ अपनी फूंक से उसको बुझा दो तो क्या होगा, वो फटाक से बुझ जाती है। इट मीन्स द मैच स्टिक इज़ वीकर देन द ब्लोइंग पावर ऑफ अस।
ठीक है, यानी वो हमसे भी कमज़ोर है, तो हमने उसको फूंक दी और क्या हुआ, वो बुझ गई। तो विंड जो हवा होती है, जो कमज़ोर वीक फायर्स होते हैं उनको ब्लो कर देती है, बुझा देती है। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर लाइफ में आप कमज़ोर हो, ठीक है, तो हर कोई आपको हरा सकता है। इज़न्ट इफ़ यू आर वीक और बहुत जल्दी हार मान लेते हो, तो ऐसे लोगों को लोग और जल्दी हरा देते हैं, बहुत जल्दी लाइफ में वो पीछे हट जाते हैं मुश्किलों से। और ऐसे में हमारा जो कॉम्पिटिटर होता है, ऑब्वियसली ही विल विन, बट ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। एक्चुअली रोर का मतलब होता है दहाड़ना, ठीक है, पर यहाँ पर रोर का मतलब होता है फैलना, और फ्लरिश का मतलब होता है पनपना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होना, डेवलप होना। तो ही इज़ हियर विंड, ओके, ही इज़ द विंड हियर। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। और जब आपने देखा होगा, जब जंगल में आग लगती है, बड़े पैमाने पर जब आग लगती है जंगल में, और जब तेज़ हवाएं चलती है, तब क्या होता है, वही आग और ज़्यादा फैलती जाती है। इज़न्ट, जितनी ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी, वो आग उतनी ही ज़्यादा फैलती जाएगी और बहुत बढ़ जाती है। इसका मतलब ये कि अगर आप स्ट्रॉन्ग हो लाइक अ फायर, अगर आप मज़बूत हो, स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, तो कोई भी हवा यानी कोई भी मुश्किल आपको ब्लो नहीं कर सकती, हरा नहीं सकती। और उससे क्या होगा, आप और ज़्यादा you will be full of strength and stamina, and you will face the hardships in your life very lightly. Okay, and for this you have to be mentally tough and physically strong. Okay, so these destructive forces will become our friends, and just because of our strength and determination. His friendship is good, we praise him every day. इट मीन्स कि अगर ये चीज़ें हम में हो, इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग, देन हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, यानी फिर इस विंड के साथ जो हमारी दोस्ती है वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वही विंड है जो हमको इतना पावरफुल बनने के लिए मोटिवेट करता है, इतना स्ट्रेंथ, इतना स्टेमिना देने के लिए हमको मोटिवेट करता है, और हम लाइफ को बहुत इजीली और हंसते हुए जीते हैं। वी प्रेज हिम एवरी डे। टू whom we praise, here actually wind is said to be a god, और हम किसको प्रेस करते हैं, गॉड को, ठीक है, यानी जो हमारी लाइफ में अच्छा करता है हम उसको रोज़ प्रेस करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं। तो ऑब्वियसली द विंड इज़ गुड फ्रेंड ऑफ ऑल ऑफ अस, तो हम उसको रोज़ प्रेस करेंगे, उसकी रोज़ तारीफ़ करेंगे। Okay, so the conclusion of the poem Wind is that we should not feel bad that we are facing so many challenges and hardships in our life. हम हमेशा यही सोचते हैं कि सारी मुश्किलें हमारी ही लाइफ में क्यों है, ये ठीक है। और जब हम ऐसे बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज़ पढ़ चुके हैं, जिनमें ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, स्टीफन हॉकिंस है, बहुत सारे डांसर्स है ना, जिनकी लाइफ में इतनी मुश्किलें आती है, लेकिन फिर भी, और हमने अपने एक चैप्टर में भी साउंड ऑफ म्यूज़िक में एवलिन नाम की गर्ल के बारे में भी पढ़ा, जो इतनी सारी हार्डशिप्स होने के बाद भी लाइफ में हार नहीं मानते हैं और अपनी उन मुश्किलों के साथ बहुत ही ईजीली अपनी लाइफ में अचीवमेंट पाते हैं। सो इंस्टेड वी शुड मेक आवर सेल्फ मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग टू फेस दिस challenges. Okay, so this is the main purpose of the poem Wind.